you have attended this webinar. We are very, very thankful to you. So we have a special guest in this webinar today, Mr. Shravan Govil, who is CEO of Delhi NCR for Omax Limited. We are very thankful to Mr. Govil for joining this webinar for us. Talking about Mr. Govil carries an experience of real estate, specifically into real estate, of 23 plus years. His insights, his depth experience about new ideas in company, making sales strategies, conceiving new projects is a core role of Mr. Govil in last 23 years of real estate experience. So as soon he will be, he's already joined. He has already joined us, and in another 1 minute we will be starting this official webinar. Before we start this webinar, I would like to tell you the basic flow of this webinar, how we are proceeding it. So the first, we have done a small bit of survey with our audience that what are your expectations from this webinar. मतलब आप अगर इस specifically webinar से क्या expect करते हैं, आपको क्या लगता है कि किन सवालों का जवाब हमें देना चाहिए इस webinar से. तो उन वेबिनार्स के जो ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने कुछ 3 प्रीफिक्स क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं जो हमें लगता है कि हमें आपके सवालों का जवाब देना चाहिए. हमें आपके सवालों की लिए हमारे पैनलिस्ट, हमारे की स्पीकर मिस्टर गोविल वुड बी एड्रेसिंग ऑल योर क्वेरीज so that you should understand commercial real estate better than before. That's our objective of this webinar. Post that we have a presentation of an investment opportunity which is Omax Chowk, located in Chandni Chowk. I would say a flagship project and an amazing investment opportunity by Omax Group in heart of Delhi. Then followed by that, we have a questionnaire session. So in the once you on the scroll down, there is a link called Q&A. So any questions you have in mind, any questions you think the audience should answer, panelists should answer, you can just get in touch. You can just put your questions there, and from there, at the end of this webinar, Mr. Govil would be able to answer all your queries. So, Mr. Govil, thank you so much for joining us. A warm welcome to you for joining us, and our audience is waiting for you. Thank you and welcome everybody for this session. इस सेशन को जैसा विशाल जी ने अभी बताया, हम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे. छोटा सा प्रेजेंटेशन रन करके विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, क्या लोकेशन है, क्या यूएसपीज है, and some bit on the development and construction, and also then towards the end we have kept a live video footage streaming from the site itself so that आप लोग actually देख सकें कि चांदनी चौक साइट पे कितना काम चल रहा है. और मैं बिफोर इवन वी गो टू दैट, मैं सब लोगों को ये इंटीमेट जरूर करना चाहूंगा कि ड्यूरिंग इवन कोविड 2 वेव, जो 2 महीने एक लॉकडाउन की स्थिति रही थी, साइट पे काम कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का बिल्कुल उसी पेस से चल रहा है जो पहले चल रहा था. तो जो भी हमारा कमिटमेंट है डिलीवरी का जून जुलाई मैक्सिमम 2022 तक का, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा. हालांकि रेरा के हिसाब से उसकी डेट और आगे की है, 2023 की है. तो विशाल जी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं एंड देन जो आपके की क्वेश्चंस हैं वील टेक देम टुवर्ड्स दी. सो सर, मैं चाहता हूं कि क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है इसमें से काफी लोगों ने हमारे साथ कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, बीट रेजिडेंशियल बीट कमर्शियल. तो मैं इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैंने कुछ प्रीफिक्स क्वेश्चंस अपनी ऑडियंस के बिहाफ पे आपसे जानना चाहूंगा. एज एन एक्सपर्ट मैं चाहता हूं कि आपका ओपिनियन हम आप अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकें. तो मेरा सर जो पहला सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑडियंस, कि कमर्शियल रियल एस्टेट में की जो इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल रियल एस्टेट, वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से क्यों बेहतर है. तो आई वुड बी थैंकफुल सर कि अगर आप मेरे ऑडियंस को इसका बेहतर जवाब दे पाए, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस, आपका रियल एस्टेट का 23 साल का एक्सपीरियंस मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, और वो जानना चाहते हैं कि क्यों दे शुड इन्वेस्ट इन कमर्शियल एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल. विशाल जी, बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. अगर मैं आज के करंट एनवायरनमेंट और मार्केट के हिसाब से चलूं, दैट विल बी वेरी रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट डायनामिक्स क्या है. अगर हम दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करते हैं, आपने वर्ड यूज किया इन्वेस्टमेंट. सो अगर किसी को अपने रहने के लिए घर खरीदना है तो घर ही खरीदना है, देन देयर इज नो कंपैरिजन. जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अमूमन तौर पे दिल्ली एनसीआर में रेंटल यील्ड 2 से 3% की देती है. मार्केट में अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, आप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की बात रहे हैं, बैंक, अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दोनों ही यील्ड से बेहतर यील्ड अपने इन्वेस्टर को, अपने बायर को देती है. इसके साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी साथ साथ होता है. तो फ्रॉम अ प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. और दूसरी चीज, आज की डेट में एक हैसल फ्री मैकेनिज्म इन्वेस्टमेंट का आ गया है, जो कि बेसिकली जिसमें एक
मीडिएटर कंपनी या एक डेवलपर इटसेल्फ उसको लीजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जो कि रेजिडेंशियल में इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो आपने इन्वेस्ट भी किया, प्रॉपर्टी परचेज भी करी, और अगर आपको रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंटल नहीं मिल रहा है, देन रेजिडेंशियल बिकम्स अ प्रॉब्लम। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ओवरहेड्स भी उसके आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जिस तरह से इस मॉडल को हमने डिजाइन किया है ओमैक्स चौक को, कि आपको उसको लीज की भी चिंता नहीं करनी है, तो उस टर्म्स में बेहतर यील्ड और टेंशन फ्री मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेरी। सर सेकंड क्वेश्चन है मेरा, पिछले कुछ समय में आपने देखा कोविड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी पे लेके आया, ऑल्दो नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, ओवरऑल ग्लोबली काफी बड़ा हैसल क्रिएट किया हमारे बिजनेसेस पे, हमारे नॉर्मल एक लाइफस्टाइल में। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो कोविड की 2.0 वेव हम कह रहे हैं, कोविड की सेकंड वेव कह रहे हैं, जो अभी रिसेंटली अभी एंड तो नहीं हुई है आई वुड से, बट एंडिंग की कगार पे है, व्हाट डू यू थिंक सो कि मतलब आपके ओपिनियन से इसका रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये इन्वेस्टर के लिए राइट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, ऐसा है कि कोविड का जो वेव अभी आई है, इसमें सब लोगों को ये चीज रियलाइज हुई है, जो कि मेरी अपने बहुत इन्वेस्टर से भी बात होती है, एसोसिएट्स के थ्रू फीडबैक भी आता है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। सो प्राइमरली जनरली अपने बिजनेस के अलावा देयर इज अ नीड कि आप एक बैकअप सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखें। तो इसके चलते दूसरा, एक कहीं टच एंड फील की भी एक रिक्वायरमेंट लोगों के जहन में बहुत आई है, कि जो आपका एसेट है उसको एक टेंजिबल एसेट के अंदर कन्वर्ट किया जाए, जिसको आप फील कर सकें, टच कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें। सो बोथ सिक्योरिटी, ऑल्टरनेटिव इनकम और टेंजिबल एसेट होने की वजह से रियल एस्टेट इज बिकमिंग अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन rather than just keeping something in the form of a bank deposit, जो आपको एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव रिटर्न देता है। So there is a need for a good asset, quality asset, और डेफिनेटली कमर्शियल एक, जैसा मैंने पहले भी बताया, एक हाई यील्डिंग रिटर्न एसेट क्लास है वर्सेस अ रेजिडेंशियल या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो अवेलेबल है। So that is something which is getting in demand right now. Great, great. Thank you so much, sir. So we have the last question before we start the presentation, an official presentation of an amazing investment opportunity, which is Omax Chandni Chowk. So, sir, what do you think? What should be the selection criteria for our customers to select any commercial real estate? Because जब हम कोई भी commercial real estate buy करने के बारे में सोचते हैं, there are a lot of questions we have in mind. So, what do you think? So, कि as a customer, as an investor, मेरे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होने चाहिए कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूं या मैं ये प्रॉपर्टी ना खरीदूं? देखिए, ऐसा है, आई थिंक रियल एस्टेट में ओनली थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड इज द लोकेशन। एज लॉन्ग एज आपकी लोकेशन एक डेवलप्ड लोकेशन है, दैट इज द श्योर शॉट सोल्यूशन कि आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी यील्ड का इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। यदि आपकी लोकेशन ऐसी है जो अभी डेवलप नहीं हुई है, देयर इज सम future, there's some element of doubt, so I would say you prefer a location which is already developed, established, जहाँ footfall है, because commercial के लिए ultimately आपको footfall की requirement है। So future में dynamics can change, the development priorities can change, external environment can change, but a location which is already established, accepted, should be your first priority, and then rest of the things come into place. So first is the location, secondly obviously the type of development which is happening, and third the developer or the people, the team behind the project itself, because that's also important कि आपको जो चीज कमिट की जा रही है, आपको जो चीज दिखाई जा रही है और बताई जा रही है, that should be the one which should come out, because आप जब एक अंडर डेवलपमेंट प्रॉपर्टी के कंप्लीशन तक लेके जाते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और स्कोप भी ज्यादा होता है। तो ये दो तीन चीजें अगर ध्यान में रखी जाए, एंड प्राइमरली लोकेशन, बिकॉज आप बाकी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज नहीं हो सकती है। एग्रीड, एग्रीड। आई थिंक यू हैव करेक्टली सेड कि लोकेशन किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल में तो हमें फिर भी हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम अपना ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल एसेट्स द लोकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई वुड से। Yes. So thank you so much, Shravan ji, for answering this specific questions. I think these were very generic questions, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक पहली बार जो those who are first investor into commercial real estate, they should know.
So now let's start a formal presentation of this product. This is, before we start this presentation, let me tell you all those who have joined this webinar we are going to take you the small presentation. The presentation will be around 30 minutes from now. We'll be giving you a deep insight about this project. जिन्होंने इसमें already investment किया हुआ है, for them it can be a good knowledgeable session. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अभी नहीं किया है. We are under discussion. So I think this session would be really helpful for you. So sir, I'm just sir, please. Vishal ji, let's start off the presentation, and what I would request is जो भी आप लोग के questions हैं Q&A में डाल दें towards the end. Once you've seen the site, we can answer those questions in general. So let's, without any wasting any more time, start it off. जब तक आपकी screen start होती है, मैं ये project का एक background आप लोगों को थोड़ा सा देना जरूर चाहूँगा. ओमैक्स चौक, जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है चांदनी चौक में. चांदनी चौक दिल्ली की वॉल्ड सिटी का जोन कहलाता है, which is called दिल्ली 6, या जिसको रेड फोर्ट के एडजॉइनिंग भी लोग जानते हैं. सदर बाजार की लोकेशन ये कहलाती है, सदर बाजार, रेड फोर्ट, और सारा अराउंड दैट विसिनिटी, दैट एंटायर एरिया इज दी कॉल्ड दी वॉल्ड सिटी, which is the old development. ये प्रोजेक्ट दिल्ली के बीचों बीच सेंटर ऑफ दिल्ली कमर्शियल हब के अंदर ही डेवलप किया जाने वाला प्रोजेक्ट है. जिस प्रोजेक्ट की मैंने अभी जैसे एक इनिशियल ब्रीफ में भी विशाल जी ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, अ कमर्शियल डेवलपमेंट, तो मैं बार बार इस प्रेजेंटेशन में एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई मे बी एम्फसाइजिंग ऑन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अ लोकेशन par excellent, no comparison which can be ever, a location which cannot be changed or repeated. That's the kind of a location that we are talking about. Okay, जब तक विशाल जी एक बार अपना स्क्रीन को चेक करते हैं, मैं लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को, बिकॉज ज्यादातर लोगों ने दिल्ली 6 या चांदनी चौक को देखा हुआ होगा. दे मस्ट हैव visited the place during their, you know, the early years or the childhood, or whenever you were visited Delhi. Yeah, now it's visible. दिल्ली 6 के अंदर, जिसकी लोकेशन अगर एक तरफ रेड फोर्ट है, अभी हम मैप पे भी देखेंगे जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी. यस, ऑन द लोअर हाफ ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी, राइट साइड में जो आपको एक ग्रीन कलर का पैच नजर आ रहा है, वहां से रेड फोर्ट स्टार्ट होता है. उसके पीछे यमुना बैंक्स हैं, and which goes up to the, on the left side, we'll come to the more detailed maps in the coming slides. फतेहपुरी मस्जिद तक एक पूरी एरिया है जिसको सदर बाजार चांदनी चौक के जोन से जाना जाता है. वॉल्ड सिटी कहा जाता था बिकॉज ये अर्लियर डेवलपमेंट थी मुगलों के जमाने में, 300 साल पुरानी, जिसको एक एनक्लोज्ड डेवलपमेंट के तौर पे किया गया था, एक कोर्ट की तरह डेवलप किया गया था. वो एरिया का पूरे को हम चांदनी चौक कहते हैं, और इस चांदनी चौक के बीचों बीच ये डेवलपमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इस एरिया की खासियत ये है, चांदनी चौक का ये जो 4 से 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया के अंदर करीब 1 लाख से ज्यादा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड हैं. तो आप समझ सकते हैं द क्वांटम ऑफ बिजनेस वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपेक्टेड. लाखों लोगों का फुटफॉल होता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट. एंड डिस्पाइट कि ये एरिया चूंकि बहुत पुराने डेवलपमेंट है, उस समय के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जिसको आज की डेट में ऑग्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है. पीपल आर ट्राइंग, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑग्यूमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर of the area. There is a redevelopment happening. There's a specialized body called Shahjahanabad Redevelopment Authority, SRDA, this area ko pure ko redevelop kar rahi hai, and the activity has been going on for quite some time. The inauguration of the non-motorized zone, which we are going to show in the coming slides, was to happen in the month of April, but because of COVID it got deferred. So as I was mentioning, there are lakhs of businesses which are operating. There is a $1 billion B2B business which happens. This is a serious market which caters to business supply or the purchase which happens here. This is more of a business oriented commercial development area within Delhi, and is one of the Asia's largest commercial hub. Despite having such a huge commercial volume and trade, Chandni Chowk is also famous for over 1,000 kinds of food delicacies. तो दिल्ली का एक्चुअल फूड, दिल्ली का एक्चुअल फ्लेवर, ऑथेंटिक क्यूजीन के लिए भी चांदनी चौक बहुत फेमस है. नेक्स्ट प्लीज. ये वो मैप है which I was just mentioning. This shows the entire Chandni Chowk. On the right is the Red Fort. On the upper half is the Old Delhi railway station. The road in between is called the main Chandni Chowk road.
which starts from on the right from the Red Fort and on the left goes up to Fatehpuri Masjid. चांदनी चौक के अंदर भी अलग अलग मार्केट्स जोन वाइज डिवाइडेड हैं, जैसे हम एक टिपिकल हाई एंड मॉल के अंदर देखते हैं. सो इफ यू आर सीइंग द ग्रीन पैच ऑन द राइट, भागीरथ प्लेस, व्हिच इज द इलेक्ट्रिकल मार्केट, देन देयर इज अ गोल्ड एंड ज्वेलरी मार्केट, देन देयर इज अ गारमेंट्स मार्केट, किनारी बाजार जिसको मसाले का मार्केट कहा जाता है, एंड देन देयर इज अ स्पेशलाइज्ड जोन कॉल्ड नई सड़क व्हिच इज फॉर द बुक्स. So this is all various zones within Chandni Chowk. So if you have to buy jewelry, garments, artificial jewelry included in that, and the real diamond stuff, everything. So there's a specialized zone and an area within Chandni Chowk where you're supposed to go and do that shopping. Secondly, for the purpose of marriage related shopping, Chandni Chowk is one such destination which I don't feel that any marriage can get complete without the families visiting Chandni Chowk for shopping. एंड इन द मिडल ऑफ दिस ऑल जो एक येलो कलर का आपको एक मार्किंग दिखाई दे रही है, वो हमारा ओमैक्स चौक प्रोजेक्ट है. सो व्हेन वी आर इवन टॉकिंग अबाउट चांदनी चौक दिल्ली के बीचों बीच हो गया, उस चांदनी चौक के भी बीचों बीच हम लोगों की डेवलपमेंट है. सो वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज adjoining or on the fringe or as a Chandni Chowk extension. There was a survey done by an international magazine which talked about what is the kind of a business that Chandni Chowk does, and it came out with numbers which are humongous, billions of dollars of worth of business which happens. It's one of the busiest markets of Asia. Next, please. The redevelopment work जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, the entire road from Red Fort to Fatehpuri Masjid is being made into a non-motorized zone, which means वहाँ के ऊपर उस particular patch के ऊपर there will be no vehicular movement during the daytime. From morning 9 a.m. to evening 9 p.m. there'll be only non-motorized vehicles, e-rickshaws और pedestrian movement that will happen. ये जो फोटोग्राफ है ये फुवारा चौक एंड शीशगंज गुरुद्वारे की है. वी आर लोकेटेड जस्ट अबाउट 25 meters away from this फुवारा चौक, which is the prime central location of Chandni Chowk. Next, please. There are few more pics of how the redevelopment has happened. So जो एक congested lane हुआ करती थी, main road जहाँ पे movement की जगह नहीं थी, haphazard way में parkings हो जाती थी, from there it has come up to a beautiful walking plaza which has got created in the middle of the Chandni Chowk. Next, please. ये वो road है जिसकी I was just talking about, the traffic free zone which is shown by the yellow marking. On the right towards the arrow is the Red Fort, and on the left is the Fatehpuri Masjid, and on this road is your Sheeshganj Gurdwara and other major attractions of Chandni Chowk which are located. So in next couple of months, there will be, this road will be once inaugurated, will become completely non-motorized, and this red path which is shown in front of the Red Fort and goes up to Omax Chowk will be the only path available for vehicles, and Omax Chowk will be the last point for the parkings to be available. So the project that we are developing is just not commercial project, but also a multi-level car parking project. Iske details I'll cover up in the next few slides. Has both the advantages. One, it is located in the middle. Second, that will technically become the last point of access by a vehicle to Chandni Chowk. And adding to it is the fact that Chandni Chowk's metro station is just adjoining our property. So whatever way then you have to access Chandni Chowk. अगर आपको गाड़ी से जाना है, आपको metro से जाना है, both access will happen almost at this particular location that we are talking about. Next, please. जहाँ चांदनी चौक की इतनी खूबियां हैं, इतना volume of business है, lakhs of businesses are there, food delicacies are served there, and bulk buying of goods happens. Chandni Chowk has been historically plagued with huge amount of difficulties because of obviously this huge footfall which happens. Lanes are narrow. उन गलियों के अंदर accessibility, fire services पहुंचाना अपने आप में एक बहुत difficult task है, जिसकी वजह से redevelopment का काम किया जा रहा है. But redevelopment की भी एक limitation है. तो it's known कि चांदनी चौक की difficulties हैं, security issues हैं, fire hazards हैं, और इसके साथ साथ next slide please. Chandni Chowk is also plagued with rampant illegal constructions, जिसकी वजह से authorities, corporations have been from time to time doing sealing activities. Unauthorized constructions को तोड़ा भी गया है, सीलिंग भी की गई है. तो जहां ये बिजनेस इतना ह्यूमंगस है, उसके साथ साथ इंफ्रा की प्रॉब्लम भी चांदनी चौक में हिस्टोरिकली आज की डेट में
एक बिजनेस हर्डल क्रिएट कर रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। This is another image of how sealing has been happening over the years over Chandni Chowk. I'm sure जो लोग दिल्ली के बारे में वाकिफ हैं, they will be aware of it as to what all actions authorities have been doing on these matters. Next, please. Now, before we go to the next section, here I would like to mention a very critical important point. इस entire area के बीच में जहां मैंने अभी location cover करी, accessibility cover करी, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है ओमैक्स चौक का which is being developed in public private partnership. It's very important to understand what is PPP mode. PPP mode is जहां पे गवर्नमेंट बॉडी के साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके एक पब्लिक एंटिटी comes and develops a property along with the government participation in terms of land being owned by government, and Omax is coming as a development partner on the project. So इस प्रोजेक्ट का फॉर्मल इनॉग्रेशन मार्च 2018 में किया गया था, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के सीनियर लोग मौजूद थे। उनके सामने इसको कॉर्पोरेशन के ही ऑफिशियल्स के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग एक्टिविटी की गई थी। नेक्स्ट प्लीज। लोकेशन जो भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में मेंशन करी थी, जस्ट टू रिएटरेट, इट्स अ zoomed in map for that. So within Chandni Chowk, within all those zones where the land is located is in the middle, and उसके पीछे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, जो उसका एग्जिट है, that's just there on our site adjacent point itself. Next please. Now I'll show you what the project is all about. Next please. This is the proposed elevation. As I was mentioning, this project is located in the middle of a high density footfall zone. So the way we have planned this project, instead of keeping a typical central atrium, we have made a concept of 7 lanes. So all these 7 lanes have a direct access on the main road, which is the HC Sen Marg, जो फुवारा चौक से लेके पुरानी दिल्ली स्टेशन पे जाके खत्म होती है। इस रोड का 100 फीट का राइट ऑफ वे है, जो पार्किंग के लिए भी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए मेन एक्सेस रोड है। इस रोड के ऊपर ओमैक्स चौक का अपने आप में 500 फीट का फ्रंटेज है। सो इट्स गॉट अ ह्यूज फ्रंट ऑन द मेन एक्सेस रोड टू चांदनी चौक, जहां पे लास्ट पॉइंट ऑफ पार्किंग होगा। These 3 floors which are you can see in the middle are the retail floors. There are top 2 floors of retail, and there's a 3 floor basement which is going to cater as parking for the project. So ground first second पे हम लोग retail develop कर रहे हैं, 3 floor basement की parking है, 2 floor उसके ऊपर, 3rd और 4th floor के ऊपर parking आती है। Next please. कुछ reference images आपके understanding के लिए as to the kind of a development, and what is evidently clear from this is what we are developing is a heritage related zone के अंदर एक property develop कर रहे हैं। तो हमने उसका architectural beauty को भी उसी lines पे रखा है, ताकि जो एरिया के अंदर प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, चांदनी चौक के अंदर डेवलप हो रही है, तो जो शॉपर्स और बायर्स who come to this area are actually able to get a feel of what the historical architectural design and culture of this area has been. Next please. इस प्रोजेक्ट की कुछ यूएसपी जो अभी मैंने पार्टली कवर करी हैं, जैसे कि मैंने बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किया जाने वाला प्रोजेक्ट है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लैंड ओमैक्स ने ओपन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोक्योर करी है। 4.5 एकड़ की डेवलपमेंट है। ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसका साइज अपने आप में एक बहुत यूनिक फीचर है। 4.5 एकड़ विद इन चांदनी चौक, इससे 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में पेरीफेरी में ये इतने बड़े साइज की प्रॉपर्टी लैंड अवेलेबल नहीं है। तो इसका एडवांटेज इस प्रोजेक्ट को ये होने वाला है कि ना ही आने वाले कुछ 10, 20, 30 सालों, बल्कि फॉर व्हाटएवर फ्यूचर वी कैन थिंक ऑफ, इस प्रॉपर्टी का कॉम्पीटिंग प्रॉपर्टी साइज टर्म्स में कोई डेवलप नहीं हो सकती। जो दूसरे प्रोजेक्ट्स विसिनिटी में डेवलप हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1000 मीटर पे, 1500 मीटर पे, वहीं पे हम 18,500 मीटर में 2200 गाड़ियों की पार्किंग के साथ इस डेवलपमेंट को लेके आ रहे हैं। ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, जो उसका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क या डिफिकल्टी में लाने वाली चीज होती है कि कल को यदि उससे बड़ी प्रॉपर्टी आसपास आ गई तो वो पुरानी रियल एस्टेट जो पुरानी प्रोजेक्ट है उससे रिटेलर्स एंड बायर्स बड़ी प्रॉपर्टी में मूव कर जाते हैं। सो द लोकेशन एंड साइज बोथ आर नॉन रिपीटेबल या नॉन मैचेबल जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स जैसे मैंने ब्रॉडली अभी कवर किए, 500 फीट का फ्रंटेज है,
हाई सीलिंग हाइट्स है, 2200 गाड़ियों की पार्किंग है, मल्टीपल लिफ्ट्स, कार लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स का अरेंजमेंट किया गया है एंड मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम है। सो एक सेफ, क्लीन, हाइजेनिक एनवायरनमेंट में उसी चांदनी चौक के अंदर एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ये ओमैक्स चौक। नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ सवाल जो जनरली, जैसे अभी शुरू में विशाल जी ने कवर किए, कि आपका प्रोजेक्ट की सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है बायर्स के लिए। तो हाउ डू वी इंश्योर दोस थिंग्स आर देयर? तो सबसे पहले ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, जहां में गवर्नमेंट बॉडी लैंड ओनिंग एजेंसी है, जिसके पास ये लैंड ऑलमोस्ट फॉर 30-40 ईयर्स से वो ये लैंड ओन करती थी। 1991 में उन्होंने एक सिंगल लेवल पार्किंग बनाई थी, जिसको डिसमेंटल करके हम अब रीडेवलप कर रहे हैं। तो लैंड इज एनकम्बरेंस फ्री, all kinds of defect free and free from any kind of a liability. इसके अलावा लोकेशन, साइज जो मैंने अभी कवर किया, जो नॉन रिपीटेबल है, विच इज अ बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन। बाकी हम लोगों ने डिजाइन, उसका स्ट्रक्चरल वेटिंग, वी हैव इन्वॉल्व्ड द बेस्ट ऑफ द एजेंसीज, एंड ओमैक्स इटसेल्फ हैज अ ह्यूज track record, which I'll come to you. We have done millions and millions of square feet of area delivered till now. So we are putting in the best of the resources for this particular project, because this is the best of the location that you can get in Delhi. Next, please. इसकी डिलीवरी की क्या आपको एश्योरेंसेज हैं? ये प्रोजेक्ट में एक और खास यूनिकनेस है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली हाई कोर्ट के मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जहां पे एक स्पेशल बेंच हाई कोर्ट की ऑन अ मंथली बेसिस इसकी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रही है, दैट ऑल अप्रूवल्स, ऑल डेवलपमेंट इज hassle free, and in case there is any issue or any delay, then court can intervene and address the problem. So jahan pe generally courts ka involvement can lead to some kind of a delay, here it's the vice versa. Secondly, all NOCs, all approvals have been obtained. I'll share with you the details of a RERA registration number also, which you can go and check on the RERA website. Quality, design, structure, everything has been taken care of. So anything that is required for a project to be done, everything has been already taken care of, thought about and planned for this particular project. Next, please. जो NOCs की मैंने अभी बात करी, इस particular slide पे you can see a RERA number. You can yourself go on the Delhi RERA website, put in this RERA number, check all NOCs. जितनी NOCs required हैं, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट से है, दिल्ली अर्बन आर्ट सेंटर से है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेआउट पास कराने की है, दिल्ली जल बोर्ड की है, everything has been obtained. Complete NOCs, all approvals, then only we started the project development and marketing. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, येट वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगा। जो चांदनी चौक जिसमें इतना बिजनेस है, एक्सट्रीमली हाई रियल एस्टेट एसेट वैल्यूज हैं, उसी चांदनी चौक की एक और सिचुएशन है कि मेजॉरिटी और लार्ज चंक ऑफ दैट एरिया is on a pagdi system, where you don't have actually a clear title ownership document, but a physical possession system, जो एक historically accepted norm में चलता आया है मार्केट में, but it's not a clear title bankable property. So वहीं पे हम आपको 99 years lease के साथ a clear title registrable property आपको ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने इनिशियली भी ब्रीफ किया था, 5 लेवल पार्किंग्स हैं, 3 लेवल बेसमेंट, देन वी हैव 3 लेवल रिटेल एंड 2 लेवल पार्किंग्स अबव। सो ऑलमोस्ट 2100 प्लस 2200 गाड़ियों की पार्किंग हम इसमें डेवलप कर रहे हैं, विच विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एंड अट्रैक्ट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फुटफॉल। क्योंकि पार्किंग की एक बहुत एक्सट्रीम scarcity है इस entire area में, so the parking is something which is critically required, and that's why this project is getting developed. Next, please. Food court, one of the largest in Delhi NCR, 1500 plus की seating area के साथ में, second floor is a dedicated food zone. So मैं food पे इसलिए emphasis कर रहा हूँ because Chandni Chowk is known for its delicacies, चाहे वो पराठे वाली गली हो, चाहे छोले भटूरे हो. So everything, not only from Chandni Chowk, but entire India, we are going to put under one roof. So with serious shopping and food, this along with the parking and location, ये critical requirements सारे factors की चांदनी चौक ओमैक्स चौक प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऊपर के हाफ में एक एलिवेशन पर्सपेक्टिव इमेज है जो कि HC सेन मार्ग फ्रंट रोड से मैंने अभी आपको जैसे बताया, जिसपे 500 फीट का फ्रंट है. द बॉटम हाफ इज अ सेक्शन व्यू. दिस विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड.
नीचे आपको 5 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फूड कोर्ट के नीचे। वो 3 लेवल बेसमेंट है, जिसमें से 2 लेवल के अंदर स्टैक पार्किंग है, और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल आता है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में फूड कोर्ट है, उसके ऊपर 2 पार्किंग के लेवल्स हैं। आइडिया बेसिकली है कि पार्किंग को भी हमने 2 जोन में डिवाइड कर दिया है, ताकि इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैन बिकम लेसर time consuming and a faster and a more smoother process. So the way it has been designed, we have tried to keep whatever best infrastructure possibly in terms of access, ease, comfort को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को प्लान किया है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ आप लोगों को शायद पहले भी इनपुट दिया गया होगा, शेयर किया होगा, आई एम श्योर हु वुड हैव नोन अबाउट द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम लोगों ने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में वर्ल्ड ओवर यूज की जा रही है, जिससे ना कि सिर्फ टाइम बल्कि क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो बिकम्स बेटर। सो एक प्री फैब्रिकेटेड स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। उसके साथ साथ इसकी क्वालिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ को हमने फर्दर एनहांस भी किया है, सो दैट इट बिकम्स एन ओवरऑल अ बेटर प्रोजेक्ट, अ बेटर रियल एस्टेट एसेट for people to have. Next please. ये कुछ लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन की फोटोग्राफ्स हैं। अभी we'll also connect you directly onto the site. Almost 35% एरिया का सुपर स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट 8 फ्लोर्स, 3 बेसमेंट, रिटेल और टॉप फ्लोर्स के साथ में। Second phase is currently going on, and third phase we anticipate in next 12 months we should be able to offer the possession to the buyers. Next please. Obviously जब इतना मेहनत किया, इतनी प्लानिंग, इतनी सोच, इतना थॉट लगाया गया है, so there have been recognitions which have been already starting coming to the project, but this is just a starting in this field. So just keep waiting. This project is going to be a milestone and will be known for its quality and planning in the days to come. Next please. These are some of the awards which you're talking about. Next please. ये सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने अभी तक आपके साथ कवर किए, मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम, एवरीथिंग व्हिच इज almost you can get in any commercial development, but what makes Omax Chowk so unique is its location, which is right in the middle of Chandni Chowk and offers you the best of any commercial development can offer you across the world. Next please. These are some of the associates and consultants. So we've deployed experts of each field, whether it is services, structure, design, architecture. So we're trying to get the best for this project so that it becomes a kind of an exemplar for other commercial developments to come. Next, please. These are the floor plans, which I'm sure our team will discuss with you one-to-one once you have made up your mind, thought about it. सारी चीजें, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आई वुड वांट पर्सनली सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख लें, सेटिस्फाइड हो जाएं. द इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन टू बाय शुड बी the final after you've done everything, your homework, and you've understood everything, whatever queries you have. Next please. These are the floor plans. I think we would have covered the majority part of the presentation. Vishalji, I think we can connect with the site if Preetpal is there. These are the few brands about Omax. I'm sure everybody is aware of. As I mentioned, we've done millions and millions of square feet of delivery till now. And we have so Shravanji, a small request, if you can just highlight about Omax, because a lot of customers are not from North India, so they are, as our major portfolio is under North India only, so if you can just highlight a few achievements about Omax, so it would be great. See, we have done about 128 million square feet delivery. We are a 31 years old company, and we have major projects spread across all major cities of North India, be it Chandigarh, Ludhiana, Sonipat, Delhi NCR, Noida, Greater Noida, Gurgaon, Jaipur, Indore, Lucknow, Allahabad. So we have been developing real estate only. We are a pure real estate play company. This is our core business and this is our expertise, and we have been doing it for ages, as I mentioned, and that's what we intend to keep doing. So we are not deviating from our core business at all. That's the only focus area, and we are expanding. So Chandni Chowk happened just about 2 years back, and we are still getting more projects in more cities across northern India. So that's our play area, and that's we are focused on and expanding our business also. We have more than 291,000 customers, and I'm sure by now
this would be about a 6 months to 8 months old data. We would have crossed this figure of 300,000 also so far. Next, please. We've got huge number of awards as a company. Our CEO, our CMD has been recognized at various forums, and we have been very active in all kinds of real estate forums like Naredco and all these places. And we have been participating and giving our inputs as and when required by industry and government at various levels as suggestions for betterment of the entire real estate sector. Next, please. These are just a list of awards, and I'm sure these are all available on a website also. So I think, Vishalji, let's go to this site and where Preetpal can. Sure. Thank you. Thank you, Shravanji, for giving this wonderful presentation. I think a lot of investors might have got a better clarity about this project. And now we have our colleague Preetpal available at site. And we are, thank you, Preetpal, for joining us. And Preetpal, so idea was a lot of people show you the construction video, a lot of people show you what milestones we have achieved. So our idea was to why not take you live directly to the site, what is exactly happening today at site. So our colleague Preetpal is there, and we will be also having our construction head, Mr. Oja, joining us for a small bite about the construction techniques and the construction pace we are using. So welcome, Preetpal. Thank you so much for joining us. Thank you, Vishalji, and good afternoon, all of you. I'm Preetpal Singh from Omax Limited. I am standing right at Omax Chowk construction site and would like to show you some live construction status of the project. So here you can see the live construction status of the project. So as we have already discussed this, that this project has been divided into 3 phases construction wise. So you see the screen that our first phase top floor roof casting has been already done, and another our second phase structuring work is going on, and our third phase excavation work is going on. So overall steel structuring and finishing is progressing. So let me show you the entire site. I would request my audience to put down your questions in Q&A. A lot of people are putting their question in chat box. So would be thankful if you can put it in Q&A. Post this construction live screening, we will be addressing all your questions. Thank you. So now Vishalji, I would like to introduce Mr. Oja. Welcome, Oja ji. So Mr. Oja ji is with us is live with us now. So, sir, our audience would like to know more about the construction. Hi everyone, this is Rajiv Oja, Senior Vice President of the Omax Group. Just little bit I want to brief about my project, that we are using the steel structure. स्टील स्ट्रक्चर जो है हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि स्टील स्ट्रक्चर को E450 BR वी आर यूजिंग. जनरली जो बिल्डर यूज करते हैं 250 एंड 350 यूज करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे हायर ग्रेड का स्टील स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द E450 BR. इसकी की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और इसमें सबसे प्लस पॉइंट है हम लोग फेज 1 का काम कर रहे हैं, फेज 2 का काम कर रहे हैं, फेज 3 का. अगर आप ड्राइंग पे देखेंगे, दिस इज द फेज 1, तो 4000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. दिस इज द फेज 1, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है. दिस इज द फेज 2, इस फेज 2 में हम लोग 35% एरिया कंप्लीट कर चुके हैं. फेज 3 की एक्सकैवेशन चल रहा है, जैसा आपको अभी दिखाया गया था फुटेज में. स्टील स्ट्रक्चर में जनरली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बेनिफिट क्या है कि सबसे फास्टेस्ट हम लोग काम कर लेते हैं, और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसको सबसे पहले अचीव कर लेते हैं. टाइम ड्यूरेशन जो हमारा दिया हुआ है, इस स्टील स्ट्रक्चर में जनरली कंपनियां यूज नहीं करती, बट हम लोग यहाँ फायर प्रोटेक्शन भी यूज कर रहे हैं. फायर प्रोटेक्शन केमिकल यूज करते हैं जितने भी एक्सपोज हमारे बीम्स है स्टील स्ट्रक्चर में, सो दैट ये फायर को रिटेन करे, 2 से 3 घंटे तक रिटेन भी करता है. ये स्पेशल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं. इसमें मैक्सिमम 7500 मेट्रिक टन हम लोग स्टील स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. इसके साथ में 6000 मेट्रिक टन हम लोग TMT यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग
TMT, and the higher grade of the concrete, that's called the ultra tech concrete, या M50 grade of concrete हम लोग यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे। वो करीब 52,000 हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। So we are going to give a very good project and on time delivery to you and best wishes. Thank you, Oja ji. Thank you for your insights about the construction. Sir Vishal ji, we would like to add a few more things. So जो स्टील स्ट्रक्चर जनरली जो हम लोग ले रहे हैं, ये स्टील स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं जिंदल से। तो JSPL से हम स्टील स्ट्रक्चर ले रहे हैं, दैट इज द ग्रेड जो है वो E450BR। E450BR, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, दैट्स वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ में हम इसको यूज कर रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो होगा वो हमारे जुलाई 2022 में हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे इन ऑल एस्पेक्ट। थैंक यू। Fantastic. Thank you, Preetpal. Thank you for joining us. And finally, I think a lot of audience is waiting. They have a lot of questions for us, and they are very eager to answer because they have gone through the presentation now, and they want us to answer their queries. Let us start with the Q&A session, which is very important for this round of presentation which we had done. So the first question which we have from our audiences, which I would like to answer, is about the freehold property. So the question is with Mr. Tarun Gupta, who wants to know that the freehold property, is it possible that we can transfer that property to our generation? Yes, sir, the property is completely transferable. This property is a leasehold, yes, because if you talk about the past history of Delhi, अगर आप दिल्ली को थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो पूरा दिल्ली ही लीज पे था। सिमिलरली नोएडा की जो प्रॉपर्टीज हैं, जितना भी अभी पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो रहा है, वो पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपने कभी टेक्निकली स्टडी किया होगा तो वो पूरा लीज होल्ड पे है। तो लीज होल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते या प्रॉपर्टी को ट्रेड नहीं कर सकते या प्रॉपर्टी आपकी रिजर्व्ड हो जाती है या उसकी रीसेल ट्रांजेक्शन नहीं होती है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं, किसी तरीके की उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। देन वी हैव I think a lot of questions we have, very, very important to answer each one of them. And I would be glad to answer that. And so what is the minimum rental income the investor will get? That's a question by Anamika Rai. So Anamika ji, minimum rental की मैं जहाँ तक बात करूँ तो अभी जिस भी प्राइस पे हम प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहे हैं, हमारे अलग अलग फ्लोर्स के अलग अलग प्राइसिंग है, और जिस भी प्राइस पे हम आपके प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका 9% पर एनम हम आपको पोस्ट पोजेशन लीज गारंटी दे रहे हैं। तो हम आपको बिफोर पोजेशन, जब तक हमारी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो जाती है, आपकी पेड अप कैपिटल पे, यानी कि हमारे पास 2 तरह के पेमेंट प्लान है इसके अंदर। वन इज डाउन पेमेंट, वन इज फ्लेक्सी पेमेंट प्लान। डाउन पेमेंट में आपको पूरा पेमेंट यानी कि 100% पेमेंट विद इन 30 to 45 डेज देना होता है। एक हमारा स्पेशल पेमेंट प्लान है विच इज 60-40, जिसमें आप 60% देते हैं, 40% पोजेशन पे देते हैं। उस पर हम आपको 9% का श्योर कमिटमेंट कर रहे हैं पोस्ट पोजेशन पहले 3 साल के लिए। इस प्रॉपर्टी का जो लीज राइट है वो पहले 27 साल के लिए ओमेक्स ग्रुप के पास है, क्योंकि हम ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारी एक डिजायर है, हमारी एक ड्रीम है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना। तो हम चाहते हैं इसका लीज कंट्रोल हमारे पास रहे, ताकि जनरली हमने ऑब्जर्व किया है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी और डेवलपर्स के एक्सपीरियंस के साथ भी, कि जितने भी प्रोजेक्ट डेवलपर ने जहां पर लीज कंट्रोल एक इंडिविजुअल बायर को या इंडिविजुअल सेलर को दिया है या इंडिविजुअल कस्टमर को दिया है, उसकी लीजिंग काफी डिफिकल्ट हुई है। तो हम इसकी लीजिंग पे काफी ध्यान दे रहे हैं, हमारी ऑलरेडी इन हाउस टीम इस पे काम कर रही है, और रेंटल इनकम आप कंफर्टेबली 10 से 11% एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोस्ट पोजेशन। और जस्ट टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट, हम पोस्ट पोजेशन के पहले 3 साल आपको 3 साल की लीज गारंटी दे रहे हैं। We have a lot of questions. Let us try to address as much as we can. So we have got one question that have the assurances been paid timely during the COVID period? I think we have a good database of existing customer of Omex Chandni Chowk. They can witness that. Hamare even in lockdown and even in COVID, whatever the PDC checks we have assured you, we have committed you, they all are honored on time. So we are thankful to Team Omax for gaining a trust at this specific uncertain time, which was a very, very difficult time for all of us. But they have assured and they have personally ensured कि किसी भी customer का assurance ना रुके. So during the COVID time, we have not stopped any assurance. Then we have
minimum investment and size please. सो सर मिस्टर अमन का ये क्वेश्चन है। अमन जी, इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 60 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और उसकी जो साइज वाइज वेरी करती है। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो दोनों ही फ्लोर्स पे हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। एज वी ऑलरेडी हाईलाइटेड इन इनिशियली ऑल्सो कि हम लगभग 80% सोल्ड आउट है। वी आर लेफ्ट विद द फाइनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रोजेक्ट। तो 60 लाख इज अवर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमारा 60-40 का पेमेंट प्लान है। जो मिनिमम पेमेंट प्लान है, जिसमें 60% आपको पेमेंट करना होता है विद इन 30 to 45 डेज और 40% पेमेंट करना होता है आपको पोस्ट पोजेशन। पोस्ट पोजेशन मीन्स जिस दिन आपको हम ऑफर ऑफ पोजेशन देते हैं। We have got query of Mr. Pradeep Sharma, what is the percentage of inventory already sold? Sir, as I told you, 80% inventory is already sold. We have got a question about the possession date. So, sir, Q1 2022 is what we are targeting for the possession date, and we are very very confident. आपने अभी live screening देखी है साइट पे, आपने live view देखा है कंस्ट्रक्शन का। क्योंकि हम स्टील स्ट्रक्चर पे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो इतनी फास्ट है कि वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ओमेक्स टीम इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि दे विल बी एबल टू डिलीवर इट ऑन टाइम। सो वी आर very confident about the construction deadlines. Question, is it a My1 construction? No sir, this is not a My1 construction. This is better than that, which is a steel structure. Question, when we can expect increase rates in food court? We have already invested. सर काफी इंक्रीज हम ऑलरेडी दे चुके हैं फूड कोर्ट के अंदर, तो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है बेचने के लिए, तो फूड कोर्ट वी आर फुली सोल्ड आउट एंड हमने आई थिंक 85,000 और 90,000 रुपीज के प्राइस से बेचना शुरू किया था उसको। दैट वाज अवर फर्स्ट सेल। और आई थिंक अभी जो करंट प्राइस है वो 1,10,000 या 1,15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास हमने लास्ट सेल क्लोज किया था, एंड उसमें भी इन्वेंट्री नहीं है। तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गेन अ डिसेंट प्रीमियम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि पोजीशन तक इसकी अप्रिसिएशन और बेटर हो। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अदिति तिलांग जी। शी वांट्स टू नो कि 27 साल की ओमेक्स ने कमिटमेंट ली है, यानी कि 27 साल का लीज कंट्रोल लिया है, उसके बाद इसका क्या होगा? तो मैम जनरली व्हाट वी डू व्हेन वी साइन एनी प्रोजेक्ट, हम कोई भी प्रोजेक्ट का लीज कंट्रोल अपने पास लेते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मेक अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। हम एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जो उस प्रोजेक्ट की एक गवर्निंग बॉडी होती है, जिसमें एज एन इन्वेस्टर आप भी रहते हैं और आप ही सब मिलके उसके अंदर एक जुडिशरी बॉडी बनाते हैं जो उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने तरीके से चलाती है। तो डेफिनेटली उसमें ओमेक्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और वो बॉडी जॉइंटली मिलकर डिसीजन लेगी रिलेटेड टू एनी लीजिंग। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सारी डिपेंडेंसी बॉडी पे रखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वी विल बी ऑल्सो हैविंग अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजेंसी ऑन बोर्ड। ये हमारी पोस्ट पोजीशन ही शुरू हो जाएगी, बट यू आर राइट कि 27 साल तक तो हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एंड स्लोली ग्रेजुअली 27 साल काफी एक बड़ा ड्यूरेशन होता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाने में और लोगों को कंट्रोल करने में। तो आई थिंक उसके बाद द थिंग्स विल बी इन अ बेटर शेप। सो वी हैव गॉट वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एग्जिट ऑप्शंस फॉर वर्चुअल स्पेस। सो सर एग्जिट तो कहीं भी होता है जहां एप्रिसिएशन होता है। मेरा सिंपल मानना है कि वर्चुअल हो, नॉन लॉकेबल हो, लॉकेबल हो, डज नॉट मैटर। द मैटर इज अबाउट कि प्रॉपर्टी का प्राइस कितना अप्रिशिएट हो रहा है, प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर्टी टाइमली डिलीवर हो रही है, प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है और प्रॉपर्टी पे डेवलपर एफर्ट लगा रहा है लीजिंग के लिए, तो चाहे वो लॉकेबल हो, चाहे वो नॉन लॉकेबल हो, चाहे वो वर्चुअल हो, कंफर्टेबली आप एग्जिट कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी लीगल कॉम्प्लिसिटी या लीगल कोई भी इशू नहीं आता इसके अंदर आपको रीसेल करने में। शाकिर जी, आपका एक क्वेश्चन था वैल्यू एंड पेमेंट प्लान एंड रिटर्न्स। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 60 लाख रुपीज की है, 55 to 60 लाख डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर। और इसके अंदर जो पेमेंट प्लान है, जो लीज पेमेंट प्लान है वो 60-40 है। 60% आपको अभी देना होता है, 40% पोजीशन पे देना होता है। और जो 60% पेमेंट आप अभी देंगे अभी, उस पर हम आपको 12% का शॉर्ट रिटर्न देते हैं पोजीशन तक, जब तक कि ये बिल्डिंग आपकी हैंडओवर नहीं हो जाती। और पोस्ट पोजीशन हम आपको 9% का लीज गारंटी देते हैं पहले 3 साल के लिए। There are few more questions in chat box, so let me just try to address. There are a lot of questions we are getting for the pricing. What is the pricing of this property? So we have price as per floors. So our minimum price for this property is on first floor. As on date, we are available only on first floor. तो फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा प्राइजेस है वो 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है और हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का प्राइजेस है वो 1,65,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। आई वुड रिक्वेस्ट कि जितनी भी प्राइजेस रिलेटेड, स्कीम्स रिलेटेड, प्रोजेक्ट की डिटेल एनालिसिस या डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर जिन्होंने अभी
आपको कम्युनिकेट किया था इस वेबिनार के लिए. दे विल गेट बैक टू यू पोस्ट दिस वेबिनार एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू address. They will be happy to serve you for all your queries. We have another question about the brands expected to come there. So we have already started leasing for this project. हमारी leasing का जो process है वो already start हो गया था. Initially हमने कुछ brands अपने panel पे ले भी लिए हैं. So we have Haldiram's, we have a lot of traditional food brands, we have Meena Bazaar, we have Chhabra 555. तो अभी हमारा जो focus है इस project को लेके, we don't want to make it a specific, a normal mall. We want to make this a mall, a unique mall, which is nowhere available in India. We wanted, as you know, चांदनी चौक में टूरिस्ट ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज्यादा है ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया. लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से चांदनी चौक में आते हैं विजिट करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, वहाँ के हिस्टोरिकल जगहों को देखने के लिए. कंसिडरिंग दैट इन माइंड, जैसे कि आपने हमारा फूड कोर्ट भी देखा होगा, तो फूड कोर्ट में वी हैव, हमारा जो डिजाइनिंग है फूड का वो काफी ट्रेडिशनल है, मुगलाई आर्किटेक्चर हमने उसके अंदर यूज किया है. इसी के साथ साथ जो हमारे फूड कोर्ट के काउंटर्स हैं या हमारे फूड कोर्ट के रेस्टोरेंट्स हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मतलब हर शहर का, हर स्टेट का, हर रीजन के कुछ कुछ डिफरेंट कुजीन्स हम उसके अंदर लेके आएंगे. सिमिलरली रिटेल के अंदर भी हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसको एक टिपिकल मॉल बनाना नहीं है कि हम यहाँ पर वैन यूजन या हम यहाँ पर लग्जरी ब्रांड्स को लेके आए. हमारा फोकस है कि हर तरीके का एक ब्रांड मिक्स यहाँ पर हो. जैसे कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे, विच इज अ ब्राइडल मार्केट. So when I say bridal market, it's a vast area which we are going to create for the bride and groom. तो जब हम शादी के बारे में सोचते हैं तो हमारे को अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें खरीदने जाना पड़ता है. तो we are trying to create a concept in this project wherein specifically dedicatedly on first floor a huge area wherein we will be targeting a specific audience which is related to marriage. क्योंकि चांदनी चौक कि एक बहुत मेजर ऑडियंस आती है चांदनी चौक में शादी की शॉपिंग करने के लिए. चांदनी चौक जाना जाता है लहंगों के लिए, शेरवानी के लिए और जितनी भी उससे रिलेटेड सपोर्टिंग चीजें लगती हैं वाइल ड्यूरिंग मैरिज. तो वो सारे फैक्टर्स को समझते हुए हमने एक स्पेसिफिक एरिया इसके अंदर डेडिकेट किया है जिसमें हम डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स वहाँ पर लेके आएंगे. So we have one question about civil projects have bad reputation on delay. Every builder no exception. Why should this not to be delayed? तो सर जैसे कि हमने बताया कि हम इसमें सिविल, यूर राइट, की प्रोजेक्ट्स पहले पास्ट में डिले रहे हैं और बिल्कुल आपने देखा भी होगा काफी. वी कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन. बट जैसे कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई कि कंस्ट्रक्शन फुल पेस पे है और कंस्ट्रक्शन हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं विच इज स्टील स्ट्रक्चर. तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का पेस है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल बिल्डिंग काफी बेटर है. सबसे इंपॉर्टेंट उसके अलावा फैक्टर हमारा ये है कि सर ये प्रोजेक्ट जैसे कि आपको श्रवण जी ने बताया था, दिस इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है वो पर्सनली हाई कोर्ट की एक स्पेशल बेंच है जो उसको मॉनिटर कर रही है. क्योंकि इसके अंदर जो कार पार्किंग हम बना रहे हैं उसको मेंटेन हम करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी है. वो पार्किंग गवर्नमेंट को बिलोंग करेगी, उसकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस हमारे पास रहेगी, बट उसका जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं 3 साल बाद, पहले 3 साल के लिए ओमैक्स के पास रहेगा, पोस्ट दैट वो शेयर किया जाएगा नॉट डीएमसी के साथ. तो क्योंकि चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जो चांदनी चौक का पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा है विच इज अ नॉन ट्रैफिक जोन जो क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट रेड फोर्ट से फतेहपुरी सीकरी तक, ये उसका एक पार्ट है. तो वी कैन बी वेरी श्योर एंड प्राउड, वी कैन अश्योर यू कि द पोजीशन ऑफ दिस विल बी 100% ऑन टाउन विदाउट एनी डिले. दिस इज व्हाट वी कैन अश्योर यू. और जैसे आपका कंसर्न एक और भी है कि अगर डिले होता है तो क्या, तो जो हम आपको 12% का श्योरिटन कमिट कर रहे हैं वो आपको तब तक मिलेगा जब तक आपकी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो जाती. तो इन एनी वर्स्ट ऑफ द केसेस अगर ये प्रॉपर्टी डिले होती है किसी भी रीजन की वजह से, तो वी विल बी गोइंग टू गिव यू अ श्योरिटन टिल पोजेशन. So I think we have covered up many questions, mostly questions about this project. And I think एक last question I would like to consider about सर ये मॉल किस तरह के कस्टमर बेस को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है. सर आई थिंक राजी मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन एड्रेस किया है कि हर तरह की सेगमेंट को कंसिडर करते हुए, चाहे वो आज अगर मैं बात करूं चांदनी चौक की जितनी भी फेमस मार्केट है, कटरा ने लो, भगीरथ पैलेस हो, उन सारे शॉपकीपर्स ने हमें अप्रोच करना स्टार्ट भी कर दिया है. सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी परचेज्ड द प्रॉपर्टी इन दिस प्रोजेक्ट wherein they wanted to make a decent showroom of their product, wherein they wanted to showcase their product to their customers, to their buyers traveling from different cities. तो आपने जैसे कि चांदनी चौक में देखा होगा लोगों की बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, बट उनके काफी बड़े बड़े गोदाम हैं जहां पर वो अपना बाकी का स्टॉक रखते हैं, जहां से वो ट्रेडिंग करते हैं. वो सूट के 1-1, 2-2, 3-3 सैंपल्स वहां पर रखते हैं, वहां पर शोकेस करते हैं और वहां से पीछे जो भी ऑर्डर वो बुक करते हैं वो बैकग्राउंड से अपने गोदाम से डिस्पैच कर देते हैं.
तो सिमिलर काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट हमारे पास भी लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया है, लोकल रिटेलर्स ने भी हमें अप्रोच करना शुरू किया है, जो वहां से अपने बिजनेस को ट्रेड करने के लिए बेटर फैसिलिटीज के साथ यूज करना चाहते हैं। बिकॉज आप सबको पता है चांदनी चौक के अंदर जाके आज की डेट में जो टेक्निकल चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जैसे कि आप सेफ्टी नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी, आपकी वहाँ की जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी पुअर है। तो lot of local retailers also wants to come in this project to have their showrooms and to have their showcase center here in this project. So I think we have covered up almost all the questions related to this project, and I think I have tried to cover up maximum questions but we have got it from audience. And any questions which we missed, I'm very sorry for that. We will be trying ki our relationship manager will get back to you immediately after 1 hour of this, after this presentation, and they will be handling queries. We have just got one more question we should address, very important question. रजिस्ट्री नहीं होगी हमारे नाम पे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्री बिल्कुल होगी, हम आपको रजिस्ट्री करा के देंगे। नोएडा में भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जैसे होती है, जैसे आप कोर्ट में जाके अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते हैं स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प ड्यूटी भर के, वैसे ही आपकी इस प्रॉपर्टी की भी रजिस्ट्री होगी। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। चाहे प्रॉपर्टी लीज होल्ड हो चाहे प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो, ये गवर्नमेंट के अंदर ही प्रॉपर्टी आती है, तो इसकी प्रॉपर रजिस्ट्री होगी जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रॉपर्टी। द ओनली डिफरेंस विल बी कि ये प्रॉपर्टी 99 ईयर्स की लीज पे है। इसका मतलब ये है कि 99 ईयर्स तक गवर्नमेंट हमें मदद करेगी इस जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। जैसे आप नोएडा अगर आप देखेंगे, नोएडा एक नया शहर है। मैं नोएडा से बार बार क्यों इसको कोरिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे अभी तक भी लीज होल्ड है। दिल्ली का बहुत कम हिस्सा फ्री होल्ड, मोस्टली एरिया फ्री होल्ड हो गया है, बट अभी कुछ कुछ पुरानी डेवलपमेंट्स है जो लीज होल्ड है। बट अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट की बात करें तो पूरे तरीके से वो लीज होल्ड पे चल रहा है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, जैसे जैसे वो शहर बसता चला जाता है, उस शहर को लीज होल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दिल्ली की भी 90% 80% एरिया फ्री होल्ड हो चुका है, और जैसे जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स देती रहेगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑप्शंस देती रहेगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस एरिया विल बी आल्सो कन्वर्टेड एज अ freehold property. Great. So I think we have covered up all the questions. Thank you so much to my entire audience for joining us and for trusting us and sparing good time out of your busy schedules. And one thing I just wanted to add on before we end this presentation, सर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की जो यू शुड नॉट मिस। मतलब दिस इज समथिंग लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हम इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक बात बोलते हैं, व्हाई वी कॉल इट अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके जैसा कोई भी प्रोजेक्ट हमारे 5-7 किलोमीटर के रेडियस में नहीं आ सकता। इतनी बड़ी ना तो कोई लैंड पार्सल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, इतना बड़ा लैंड पार्सल ना ही कोई अवेलेबल है हमारे गवर्नमेंट बॉडी के पास, ना ही कोई प्राइवेट इन्वेस्टर के पास। 1000-1500 मीटर का छोटा मोटा कोई पार्सल हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर के पास या किसी गवर्नमेंट बॉडी के पास, बट 4.5 एकड़ का बड़ा लैंड पार्सल हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा विनिंग पॉइंट है, बहुत बड़ा स्पेशल प्रिविलेज है आप लोगों के लिए एज एन इन्वेस्टर, जो कि जनरली कमर्शियल में प्रॉब्लम फेस की जाती है। जनरल में कमर्शियल में एक सवाल होता है कि यार एक मॉल बना, इससे बेहतर मॉल बन जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट आप ये एक यू कैन हैव अ फेथ ऑन दिस कि इसके बाद इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मॉल नहीं आने वाला है, इस साइज का कोई भी मॉल नहीं आने वाला है। और 1000-2000 मीटर में सर मॉल नहीं बनते, वो एक टिपिकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है 10-12 दुकानों का, और वो हमारा कोई किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन क्रिएट नहीं करता है। तो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आई होप यू आर एंजॉइंग योर एप्रिसिएशन। अलग अलग प्राइजेस पे, अलग अलग स्कीम्स में कस्टमर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड दे ऑल आर एंजॉइंग देयर रिटर्न्स, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। और इसके अलावा जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए अगेन स्पेशल रिक्वेस्ट, प्लीज इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। Thank you so much to all of you. We are ending this presentation and ending this webinar. And now we can request जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, इस प्रोजेक्ट की आप और जानकारी लेना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करते हैं, they will get in touch with you shortly for further details. Thank you so much. Thank you team Omax for joining us. Thank you Pankaj, Preetpal, Ramneek, and everyone from Omax team for joining us, and Jimmy Ji for joining us and helping us to make this webinar a huge success. Thank you.
Investoexpert.com, India's leading property search platform.